Assalamualaikum everyone. My name is Muhammad Umar and I'm from Comsets University Islamabad Wah campus. Today the topic that was assigned to me is don't be burden on your parents. Parents who are the most precious gift from Allah Almighty. They are like the shade of a tree. It is the first right to obey our parents. We have to respect them to the core. No matter how successful we are in our life, we can never disregard them. It is their generosity that they support us financially. They love their child too much. They fulfill our daily routine requirements. And if we talk about the only dream of the parents to their child, that they want their children on the peak of the success. They not only support us, but they also support our siblings as well. We should always keep in mind that they can bear a lot of responsibilities, whether it will be electricity, whether it will be our bills, whether it will be transportation, whether it will be medicine. They support us on each and every moment of our life. As a responsible citizen and child, it is my responsibility that to help my parents. The question arises, how? How can we do this? How can we help our parents? If he is a businessman, we can help them in their business. But if he's a job person, but how can we participate into that? As a responsible citizen and child, it is my responsibility that to help with my parents. The question arises, how? How can we do this? How can I do this? If I am a student, I don't have a job. Well, if my parents are business person, I can help them. But if they are doing a job, I should also do some job in my free time. And if this is not even possible, I can also do one thing, that is to avoid unnecessary orders that can't be fulfilled by them. We can help them in the house chores. We should not tease our mothers to press our clothes. We should be playing our part. And from this, we don't be burden on our parents. And besides this, we need to make some rules with our siblings. That if one day you can clean the floor, the other day the other sibling can clean the floor, and from this the work will be distributed from all of us, and from this our parents will be happy from us and they will take some rest, and from all of this, from all through work, they will be happy. Thank you. मेरा नाम विशाल है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी स्किल्स राइटिंग है। सही। इसके बाद मैं गेम में फुटबॉल पसंद करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। आप भी मेरे भाई? मेरा नाम रेहान है। ठीक है। 9th क्लास में मैं पढ़ता हूँ और हॉबी क्रिकेट है। आप भी मेरे भाई? मेरा नाम अब्दुल रहमान है, क्लास 7 में पढ़ता। ठीक है। देखिए बेसिकली कुछ फर्स्ट ईयर के हो आप, कुछ 9th के हो, कुछ मैट्रिक के हो, ठीक है। सो इवेंचुअली क्या होगा कि आप जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप एक जो है ना प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंटर होंगे और आपको कोई स्किल होनी चाहिए, या कोई आप किसी जगह नौकरी करेंगे या आप अपना बिजनेस करेंगे, ठीक है। सो आजकल आपको जैसे पता है कि सब जो है ना डिजिटल स्किल्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। आप भी मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करते होंगे, तो लोग कहते हैं कि पुरानी स्किल्स सीख ले, पुरानी सीख ले, तो ये होगा वो होगा, ठीक है। अब जो जिन स्किल्स, मतलब मैं जिस चीज़ पे काम करता हूँ, तो वो है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मैं जब 2019 के अंदर कोविड आया था ना, तब मैंने स्टार्ट किया था स्किल सीखना। मैंने एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर पहले काम किया था, ठीक है। और मैंने 3 महीने काम किया और उसकी जो फर्स्ट मंथ की मेरी सैलरी थी वो 3000 रुपये थी इस टाइम 2019 में। सो इवेंचुअली अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अपनी कंपनी है और मेरे साथ 20-25 बंदे काम करते हैं और हम वेब डेवलपमेंट पर काम करते हैं, ठीक है। अब जो मेजॉरिटी ऑफ द स्किल्स है ना, मतलब अब कंप्यूटर की स्किल्स दुनिया के अंदर कौन कौन सी स्किल्स आती है? एक आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आ गई, एक वेब डिज़ाइनिंग की आ गई, एक वेब डेवलपमेंट की, एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट की और एक गेम डेवलपमेंट की, ठीक है। मैं जिन चीज़ों पे काम करता हूँ वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट पे है, ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि अगर आप विलिंग हैं कि आप अभी से सीखें और जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंटर हो तो आप ऑलरेडी इतना प्रिपेयर हो कि ठीक है जी, हमारे लिए 1.5 लाख रुपए कमाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हम अपने घर बैठे अपने लैपटॉप से निकाल लेंगे उतना, ठीक है। सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हमारे पास टूल्स आते हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल फोटोशॉप हो गया, ठीक है, आपका इलिस्ट्रेटर हो गया,
और आपका Adobe XD हो गया। Adobe XD आपके वेब डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है और फोटोशॉप आपका पिक्चर्स वगैरह एडिट करने के लिए इतना आपको पता होगा। और इलस्ट्रेटर जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के लोगोस बनाने हो या कोई पैकेजिंग बनानी हो, या फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी बुक है, इसका ये जो फ्रंट का डिज़ाइन है ना, ये इलस्ट्रेटर के अंदर बना है। ये जो आपकी पूरी किताब है ये इलस्ट्रेटर के अंदर बनी है, ठीक है। वो पेज की सेटिंग सेट करके उस पर प्रिंट करते हैं, ये भी इलस्ट्रेटर के अंदर बनी है ये सारी चीज़ें। तो जो भी वेक्टर बेस्ड काम होता है वो इस इलस्ट्रेटर के अंदर होता है। अब जहाँ पे बात आती है वेब डेवलपमेंट की, सो वेब डेवलपमेंट के अंदर 5-6 चीज़ें हैं। एक होती है HTML, नाम सुना कभी आपने? HTML हाइपरटेक्स्ट हाँ, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एग्जैक्टली। तो HTML जो है ना वो बेसिकली स्केलेटन होता है आपका, मतलब वो आप बनाते हो कि ठीक है एक बटन होगा। उसके बाद CSS आती है। CSS स्टैंड करती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट के लिए। वो फॉर एग्जांपल जैसे ये आपने बटन बना ली है ना, लेट से ये बटन बना लिया आपने, ठीक है, ये बने आपका HTML से, ठीक है। अब इस बटन का कलर वगैरह सेटिंग करना या इसका फॉन्ट क्या होगा वो काम करता है CSS, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि ये आपका स्केलेटन होता है और ये आपकी स्टाइलिंग होती है, ठीक हो गया। अब ह्यूमन बॉडी को हम एज एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो ढांचा है वो HTML है, हमारे ऊपर से ये जो स्किन है और जो हमारा कलर, हमारे हेयर का कलर, ये सारी CSS है। और जो हमारा ब्रेन है वो क्या चीज़ है? जावास्क्रिप्ट। नाम सुना है आपने पहले कभी? नहीं सुना होगा। जावास्क्रिप्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर इस बटन पे क्लिक हो गया ना, इस बटन पे क्लिक हो गया तो आपने ये काम करना है, ठीक है, लेट से ये काम करना है। तो ये इसको बताता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब HTML और CSS ये तो लाजमी मंजूम है एक दूसरे के लिए, ठीक है। फिर जब आप ऐसी एप्लीकेशन बनाते हो जैसे फॉर एग्जांपल हम फेसबुक यूज़ करते हैं, ठीक है, वो फेसबुक पहले कहता है कि हमें एक यूज़र नेम दो अपना, हम यूज़र नेम एंटर करते हैं, फिर साथ पासवर्ड एंटर करते हैं, फिर हम लॉगिन का बटन दबाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब हम लॉगिन का बटन दबाते हैं ना तो वो एक हमारा यूज़र नेम लेता है और एक वो पासवर्ड लेता है, और आप समझ लें कि उनका इंटरनेट पे एक बड़ा सा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर का नाम का, ठीक है। इसके अंदर आपका वो यूज़र नेम और पासवर्ड पहले स्टोर है, ठीक है। ये वाला यूजर इसके साथ मैच करता है। जब ये यूजर मैच कर लेता है, कहता है कि अच्छा यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, फिर क्या करता है ये पासवर्ड जाके इसके साथ मैच करता है। अगर वो मैच कर जाए तो वो आपको क्या करता है, नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाता है, इस स्क्रीन पे ले जाता है जो आपका होम होता है। और अगर मैच नहीं करता तो यहाँ पे वो आपका एरर क्या देता है कि इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। अब ये जो बड़ा कंप्यूटर है इसको बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है। अब इसकी कितनी मतलब कौन कौन सी हैं? एक आपका फायरबेस है, एक आपका मोंगोडीबी है, ठीक है। सो ये डेटाबेसेस हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि आप किसी का इंटरेस्ट है वैसे डिजिटल स्किल्स में? आपका नहीं, आपने क्रिकेटर बनना है इंशाल्लाह। मेरा छोटा भाई है उसने भी क्रिकेटर बनना है, और तो मैंने उसको कंप्यूटर देके दिया, मैंने कहा हाँ मुश्किल है ना, मुश्किल है, ये तो है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने की हुई है। किस सॉफ्टवेयर पे किया आपने? हमने फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर किया है, आफ्टर इफेक्ट भी किया है। अच्छा, आफ्टर इफेक्ट भी किया होगा, एडिटिंग वगैरह, सही है। तो अगर आपने सीखनी है ना फॉर एग्जांपल ये चीज़ें, तो एक चैनल है यूट्यूब पे, उसका नाम है SHERIYAN कोडिंग स्कूल, ठीक है। या आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना आपको इसका चैनल मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये सारी तीनों चीज़ें ये आपको पढ़ाएगा और काफ़ी अच्छे समझ आएंगे। और अगर किसी को फॉर एग्जांपल कभी कभी बंदे को ऐसे फेस करने पड़ जाते हैं कि जो आपको इंटरनेट पर भी नहीं मिलते, ठीक है, तो फिर ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट करना, या आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हुई, ठीक है, या आपको फॉर एग्जांपल आपने स्किल सीखी, आपको काम चाहिए कि ठीक है हम इतने हो गए कि हमें काम करना आता है, मेरे से कांटेक्ट करना। अगर आपके लेवल को कोई काम हुआ तो मैं आपको दूंगा और आप इंशाल्लाह ताला वो अपना अर्न करेंगे जितना वो आपका आपका डिजर्व करता है, ठीक। तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, शाहजेब नाम है मेरा। और अगर किसी के कोई पर्सनल क्वेरी हो तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अब आती है बारी गेम डेवलपमेंट की, वो मेरा दूसरा दोस्त है, वो आपको बताए।
अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सुनील आबिद और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने पेरेंट्स पे कैसे बर्डन नहीं बना जा सकते। तो जैसे कि पहले आपने बातों की सुनी, तो यही है कि हम अपने पेरेंट्स पे बर्डन यही ऐसे नहीं बना जा सकते कि हम पहले से ही, जैसे कि हम CS के हैं तो हम स्टार्टिंग से ही काम सीखना शुरू कर दें, जैसे कि बाकियों ने वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट वगैरह की। और आज मैं आपको बताऊंगा एक और फील्ड जिसका जो आप सीख सकते हैं, और वो है गेम डेवलपमेंट, जो कि मैंने ब्लेंडर की है। उसमें ये है कि आप ब्लेंडर का काम यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस से भी, या किसी भी बंदे से सीख सकते हैं, और इसका बहुत वास्ट स्कोप है। अब आपको मैं बताऊंगा कि आप ब्लेंडर के अंदर क्या क्या होता है और मैंने उसमें क्या क्या सीखा हुआ है। ब्लेंडर, क्योंकि आपको इसके बारे में नहीं पता, ब्लेंडर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप एनिमेटेड कार्टून्स देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, वो सब ब्लेंडर के थ्रू बनाई जाती है। ब्लेंडर में आप एनिमेशंस और इन्वायरमेंट बनाया जाता है। अभी मैंने भी सीखा है और मैंने बहुत सारी गेम अपने सॉफ्टवेयर हाउस में बनाई हैं। ब्लेंडर में होता है कि आप कैरेक्टर्स बनाते हैं, एसेट्स बनाते हैं, और उस सारों को मिला के आप एक इन्वायरमेंट बिल्ड करते हैं। और आप जब प्रोफेशनल होते हैं तो आप उसमें एनिमेशंस भी करते हैं, जैसे कि आप आजकल बहुत मूवीज़ वगैरह, एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं, एनिमे वगैरह सब कुछ होता है, वो सब कुछ ब्लेंडर से बना जाता है। तो मेरा आज का ये टॉपिक था कि आप कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और घर वालों पे बर्डन नहीं बन सकते। थैंक यू। तो जैसा कि आपने अभी मुनीब से सुना कि हम कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और अपने वालिदैन के ऊपर से हम बर्डन हटा सकते हैं, तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग, बेसिकली हम डिजिटल मार्केटिंग से हम एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर सकते हैं, जो हम किसी भी जगह अपने ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स पे बर्डन कम कर सकते हैं। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको हर जगह पे यूज़ आ सकती है अपने बिज़नेस को ग्रो करने में। किसी का बिज़नेस आप इसे ग्रो कर सकते हैं, आप इसे Fiverr पे एज आ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, और ऐसे बहुत से अपवर्क हो गया और ऐसे बहुत से वेबसाइट हैं जहाँ काम करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स पे बर्डन कम कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह ये बाकी लोगों ने बताया, इस तरह से मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, मैं एक मिडिल क्लास से, मतलब विलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इधर आया हूँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद मुझे, मतलब आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ, आप जिस तरह के माहौल में बैठते हैं, आप जिस तरह के दोस्तों से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं जिन्होंने, मतलब ये सारा ऑनलाइन वर्क सब कुछ के बारे में अच्छा खासा पता था। उनके साथ मैंने, मतलब एक काम स्टार्ट किया, एक स्किल सीखना स्टार्ट कर दिया। मैं इन स्किल के बारे में बताता हूँ कि जो भी स्किल आप कोई बंदा सीखना चाहता है ना, तो उस पर बंदा कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंसी इसमें लाजमी है, क्योंकि उसमें फिर मोटिवेशन अप एंड डाउन हो जाता है, बंदा फिर कंसिस्टेंट नहीं रहता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब अपने माँ बाप पे बंदा कब तक इस तरह के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब अपने माँ बाप पे ज़्यादा बोझ ना बने, अपने आप में एबिलिटी पैदा करें कि खुद कुछ करना सीखें। और बस यही टॉपिक था। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर से बर्डन कैसे कम कर सकते हैं। अब आप सब की एजेस भी तकरीबन 20 के करीब हो चुकी है, तो अब हमें भी अच्छा नहीं लगता कि घर वालों से पैसे मांगे जाएं, तो आप अपना कैसा पैसा कमा सकते हैं। हम हैं भी कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। हम स्किल्स सीख सकते हैं लाइक एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ़ोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग एक्सेट्रा। इसमें से किसी भी एक स्किल को चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, देन उसको मास्टर करें और इस स्किल को आप सेल करना स्टार्ट करें। जब आप इस स्किल को सेल करेंगे, अल्टीमेटली आप जो है इस स्किल से अर्न करेंगे और उससे जो है आप अपना अच्छा भला इनकम जनरेट कर सकते हैं। देन आपने इस स्किल को सेल किधर करना है, वो गूगल पे आप जाएंगे तो आपको वेरियस वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिधर इन स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लाइक फाइवर, अपवर्क, ट्रूलांसर, पीपल पर आवर और भी बहुत सारी हैं। उधर आप जाएं, आप गिग बनाएं, अपना प्रोजेक्ट्स जो आपने प्रीवियस किए हैं या आपने लर्निंग के दौरान कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह आपने किया है वहाँ पे जाके उधर करें। देन एक चीज़ आती है इसमें लिंक्डइन भी लाइक इंस्टाग्राम वगैरह की तरह ही, जिधर आप अपना वर्किंग प्रोजेक्ट्स होंगे
या आप अभी प्रोजेक्ट कोई कर रहे होंगे उसको आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। दैन वहाँ पे जो होंगी कंपनीज़ जो हैं वो आपको वहाँ से आपकी प्रोफाइल देख के आपको हायर भी कर सकती हैं। तो इस तरह स्किल्स सेल करके आप जो है अपना खुद अर्न कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स को ज़्यादा बोझ नहीं बन सकते और उनके ऊपर से बर्डन भी आप कम कर सकते हैं। थैंक्स।